My name is Anurag Singh, and today we will be studying about the syllabus of the Delhi Judicial Services, which is soon to be held on 27 March, that is, and not only the syllabus but also the general overview, what is the examination and what kind of questions can we expect in the examination, as well as which areas to focus while in the examination, right? Because CPC, let's say a subject like CPC is going to be very elaborate. So do we need to study the entire CPC और या फिर हम लोगों को specific parts करने होंगे जिनसे frequently questions आते हैं, right? So that is the subject of our today's lecture. So let's start. First thing we are going to do, we are going to discuss about the syllabus, right? First thing, this is a preliminary examination, right? ये pre-examination है, it is only a screening test, right? Screening test का मतलब क्या होगा? It is only meant for कि मेंस किसे देना चाहिए, ओनली दैट, द पर्पज इज ओनली दैट कि कौन लोग मेंस देंगे, बिकॉज इसके मार्क्स ऐड नहीं होते. दिस इज ओनली एग्जामिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, वेदर यू हैव क्वालिफाइड और यू हैव नॉट क्वालिफाइड, दैट इज द ओनली थिंग दिस इज गुड फॉर, राइट. सेकेंडली, देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, बिकॉज 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस है, दैट इज 1 मार्क ईच, राइट. And apart from this, there is also negative marking. 1 mark each question है and there will be 0.25 negative marking. इसीलिए कई बार ये भी कहते हैं कि दिल्ली में 1/4 है negative marking, right? So 0.25 is 1/4 of 1. That is why it is called as कि 1/4 होती है, right? Now, coming to the syllabus कि subjects में question कहाँ से आते हैं, right? देखो subjects क्या है? General knowledge, English, right? Let's come to the law subject first. Law subject पहले आते हैं, उसके बाद उस पे जाते हैं. We have the CPC, we have the CRPC, we have Constitution, Contract, IPC, Principles Governing the Arbitration Law, Limitation Act, Specific Relief Act, Indian Evidence Act. Now these were already there. These are from the old syllabus. पहले से syllabus में आपके ये थे, right? बट देयर हैव बीन न्यू एडिशंस. इसमें कुछ नए एडिशंस हमारे हुए हैं, जैसे कि यहां पर जो नीचे है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, या जिसको हम लोग LLP एक्ट कहते हैं, LLP सॉरी, और द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. दिस शुड नॉट बी हियर, 1963. And then we have the POCSO, which is the Protection of Children from Sexual Offences Act, and then we have the Commercial Courts Act of 2015. ये 4 है जो न्यू एडिशंस हुए हैं इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. मेंस में तो और भी एडिशंस हुए हैं हमारे, बट प्रीलिम्स में ये हमारे न्यू एडिशंस हुए. अब देखो एक बात याद रखना कि प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्बिट्रेशन लॉ, दीज वर ऑलरेडी इन द सिलेबस, बट नाउ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट इज इन सिलेबस, राइट. दे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग्स. सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्बिट्रेशन लॉ था, तो यहाँ पर अक्सर यू वुड गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट. But now you have the act, so अब act को you have to do it thoroughly. ठीक है, ये आपको thoroughly करना पड़ेगा, right? The other acts, देखो यहाँ पर जो भी हमारे, देखो you can see that these are all important and major acts. देखो, right? Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Constitution, Contract, IPC, Limitation, SRA, Evidence, all of them. ऐसा कोई नहीं है कि जो कि obscure है, right? सभी हम लोग पढ़ते हैं. The obscure ones are here, नीचे की तरफ है, उसमें भी आर्बिट्रेशन तो लोग तब भी पढ़ते हैं, but the other ones, LLP and POCSO and the Commercial Courts Act, ये पहली बार आया है, and that is why many people are scared कि इसमें क्या आएगा, because जो मेजर एक्ट्स है अभी वो ही नहीं किया है, उसी में अभी कंफ्यूजन है बहुत सारे, तो ये न्यू वाले कैसे हैंडल करना है, राइट. सो ये तो रही लॉ सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है. लॉ सब्जेक्ट्स ये सारे हैं हमारे. वी विल गो इनटू देम वन बाय वन कि कहां फोकस करना है कहां नहीं. एंड देन यू हैव जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, राइट. दिस इज ऑफन द नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सिलेबस. नेग्लेक्टेड पार्ट है सिलेबस का, राइट. नाउ यहां से देखो ये सारी चीजें ना ये सब लोग करके आते हैं, एवरीवन डज इट. ये नेग्लेक्टेड पार्ट है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज दिस एक्चुअली बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर इन मेनी केसेस. याद रखना वन थिंग अबाउट द होल सिलेबस, जो मेन सेक्शंस है लाइक सीपीसी, सीआरपीसी,
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, लिमिटेशन, एसआरए, एविडेंस, ये सभी करके आएंगे। ईच एंड एवरी वन। जो सीरियस कैंडिडेट है वो भी करके आता है और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो भी करके आता है, सभी को। सो यहां पर ऑल दीज सब्जेक्ट्स में सबका ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, ठीक है। वहां पर देर इज वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन, वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ही स्टिफ होता है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इसलिए सब पढ़ के आते हैं। The deciding factor is actually done by these general knowledge, English and the other ones जो भी लोग इग्नोर करके जाते हैं, like Limitation Act, SRA and the other ones here which are the recent editions, because ये लोगों को लगता है कि माइनर एक्ट से इसका वेटेज कितना होगा, बहुत कम होगा, which is true, वेटेज कम है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो वेटेज जिनके पास है, those acts everybody does it, सब लोग करके आ रहे हैं। तो आफ्टर द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू वॉक आउट एंड यू आर डिस्कसिंग द पेपर विथ योर फ्रेंड्स, वहां पर क्या होगा, यू विल कम अक्रॉस कि सभी ने अटेम्प्ट किया है और ऑलमोस्ट सबका सही होता है। तो वो तो आपका क्या होगा, दैट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो सबका अच्छा हुआ है। आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन। और वो एक्स्ट्रा जो है वो दो यहां पर है, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, and the other ones are here limitation, SRA, and these are smaller acts which are the new editions. ये new editions याद रखना, जिन्होंने ये काम अच्छे से किया है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जिन्होंने सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स किए हैं और इंग्लिश और जीके को छोड़ दिया है और ये माइनर एक्ट छोड़ दिए हैं, यू आर टेकिंग अ वेरी वेरी बिग रिस्क। मेजर एक्ट्स तो करने ही है, माइनर एक्ट्स को भी आपको अच्छे से करके जाना है, राइट, इफ यू वांट द सिलेक्शन। Now here is the syllabus for mains examination which is not very relevant from the prelims point of view. हम लोग अभी इसके डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, दिस इज फॉर मेंस, राइट। बट फिर भी एक बात जान लो कि इफ यू आर फेमिलियर विद द सिलेबस, हाफ ऑफ द जॉब इज डन। अगर सिलेबस से आप फेमिलियर हो तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन। तो मेजर एक्ट्स एंड माइनर एक्ट, सबसे पहला काम क्या करो, दो में डिवाइड करो। डीजेस का सिलेबस जो है, डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, वन आर द मेजर लॉज एंड द अदर आर माइनर लॉज, टू। ये लॉज की बाइफर्केशन, एंड देन अदर टॉपिक्स, राइट। देखो इसमें क्या होगा, मेजर लॉज में वी हैव सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, Constitution, contract, we have the CPC, CRPC, Indian Evidence Act, then we have the Constitution, then we have the contract, and then we have here IPC as well as SRA limitation, contract, IPC, right? Now, among the minor laws, we have the SRA, limitation, and then we have the Limited Liability Partnership Act, Arbitration and Conciliation Act, and then इसके साथ में हमारे POCSO and the Commercial Courts Act, right? मेजर और माइनर लॉज को ऐसे डिवाइड करो यहां पर, ठीक है। अब इसके साथ जो अदर टॉपिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस इज लीगल जीके एंड इंग्लिश, ठीक है। याद रखिएगा, दिस द मेजर लॉज पोर्शन, ये सभी फोकस करके देते हैं, एवरी वन फोकसेस अपॉन इट। तो ये तो दिस इज द मस्ट, ये तो करना ही करना है, यू कैनॉट स्किप इट। द माइनर एक्ट्स, दिस यू शुड, बिकॉज यही आपका सिलेक्शन कराएंगे, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल if you want to get the selection, because ये कई सारे लोग बिना पढ़े चले जाते हैं और उनका कभी कभार अच्छा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि उनका कभी अच्छा नहीं होता, अच्छा भी होता है उनका। सो इसको तीन में डिवाइड करो, मेजर, माइनर एंड अदर में, राइट। चलो नाउ लेट्स कम टू द अदर थिंग। देखो एक चीज और जो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसे कैसे हैंडल किया जाए नेगेटिव मार्किंग, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। बट लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ बैक ईयर्स, ठीक है। चलो
Let's go through the question paper of backwards. Here we have the bifurcation of DJS from 2007 to 2019. ठीक है, 2007 से स्टार्ट होगा और 2019 तक जाएगा. And as you can see, यहां पर we have subject wise breakdown. ठीक है, देखो IPC has been more or less very consistent. देखो जैसे 2010 में 22, 21, 20, 19, 20, 50. 15, 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करो आईपीसी से. ठीक है, फर्स्ट थिंग मेजर सब्जेक्ट है एंड इट हैज आल्सो बीन वेरी कंसिस्टेंट, तो यहां से आप एक्सपेक्ट करो. नाउ लेट्स गो टू सीआरपीसी. सीआरपीसी में भी देखो, अगर 2007 से स्टार्ट करें हम लोग 13, 21, 20, 20, 22, 16, 25. दिस इज ऑल्सो मोर और लेस वेरी कंसिस्टेंट. आपको यहां से क्वेश्चंस उतने ही आ रहे हैं. नाउ लेट्स गो टू सीपीसी. सीपीसी ने स्टार्ट किया 3 से, बहुत कम से, बट लुक एट द कर्व. 22, 10, 20, 18, 23, 28. 2019 में 28 क्वेश्चंस आए थे सीपीसी से, राइट. अब देखो एग्जैक्ट ऑपोजिट है सीपीसी का, एग्जैक्ट ऑपोजिट है ट्रेंड कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जैक्ट ऑपोजिट है. तो कैसे 7, 11, 21, 20, 28, 34 एंड 13. देखो यहां पर यू कैन सी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन सीपीसी इन 2018 पेपर, लेकिन 19 में क्या हुआ, सीपीसी के बढ़ गए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कम हो गए, राइट. सो याद रखना कि सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इट कैन हैपन एनीथिंग, ऊपर नीचे दोनों जा सकता है. सो डोंट थिंक कि सीपीसी कर लेता हूं बिकॉज सीपीसी से आ रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहे. नहीं, ऐसा नहीं, ये बस सोचना दोनों अच्छे से करना बिकॉज दोनों ही मेन सब्जेक्ट है और आपको यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में इससे बहुत क्वेश्चंस आए. देखो 22 में का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है. 10 आगे होगा 25, 10, 8. यू कैन सी दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो अ बिग सब्जेक्ट, बट फिर भी क्या हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, राइट. तो कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस जो है उतनी नहीं है जितनी सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन की है. ठीक है. नाउ कम टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट से भी देखो पहले 9 क्वेश्चन आ रहे थे, बट धीरे धीरे ये क्वेश्चंस कम हो गए हैं. नाउ कम टू द इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट इज द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग वन. इससे कभी बहुत क्वेश्चंस आए हैं तो कभी बहुत कम क्वेश्चंस भी आए हैं. लाइक यू कैन सी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है और नेक्स्ट ईयर 20 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 10 आए हैं, फिर 25 आए. यू कैन सी द फ्लक्चुएशन. देखो फ्लक्चुएशन देखो. और 25 के बाद वापस से 9 पे आया है, 9 के बाद 17 आया है और 17 के बाद फिर से 11 आया है. माई गेस, एंड दिस इज जस्ट अ गेस, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा. ठीक है, माई गेस कि इस बार एविडेंस से बहुत क्वेश्चन आएंगे बिकॉज यू कैन सी द फ्लक्चुएशन. पहले जब 2 आया था उसके बाद 20 आया, जब 20 आया तो कम होकर के 10 हो गया, जब 10 आया तो बढ़ करके 25 हो गया, जब 25 था तो कम होकर के 9 हो गया, 9 से बढ़ करके 17 हो गया एंड दिस टाइम इट इज 11. तो इस टाइम इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एविडेंस से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे. यहां पर 20 के आसपास क्वेश्चन एविडेंस से आ सकते हैं. बी रेडी फॉर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एविडेंस फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द ट्रेंड. सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग जो है, कम ज्यादा वो जो है एविडेंस से ही आ रहा है, राइट. नाउ लेट्स कम टू एसआरए. चलो एसआरए के बारे में देखते हैं. हियर वी हैव द एसआरए. एसआरए आल्सो हैज मोर और लेस बीन कंसिस्टेंट. 5, 3, 4, 1, 5, 9. देखो 9 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, 9 बढ़ गए हैं. बट ये देखो यहां पर प्रीटी कंसिस्टेंट 3, 4, 5, 3, 4, 5, लेकिन रिसेंटली एसआरए के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. वन थिंग विच हैज बीन कंसिस्टेंट मोर और लेस इज लिमिटेशन. देखो लिमिटेशन में क्या हो रहा है, 11, 10, 10, 11 कि लास्ट 4 एग्जामिनेशन से लिमिटेशन से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो एसआरए लिमिटेशन बोथ आर माइनर एक्ट्स, लेकिन यहां पर भी हम लोग को क्या होगा, यू कैन फोकस ऑन लिमिटेशन मोर देन स्पेंडिंग टाइम अपॉन एसआरए. ठीक है. नाउ अगर हम लोग बात करें आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन वाज मोर और लेस कंसिस्टेंट. बीच में बढ़ा भी लेकिन बीच में फिर अचानक से कम हो गया. यहां पर बढ़ा
बट अब इस बार इट कैन बी, इट इज अनसर्टेन बिकॉज सिलेबस जो चेंज हुआ है वो आर्बिट्रेशन पहले सिर्फ प्रिंसिपल से आता था, अब इस बार इन लोगों ने एक्ट को भी ऐड कर दिया है, राइट। सो आर्बिट्रेशन पे फोकस रखना बिकॉज दिस, इसमें ये वो सब्जेक्ट है जिसमें एक्चुअली इंक्रीज हुआ है सिलेबस में। बाकी सब में इधर दे हैव बीन एडेड और दे हैव नॉट बीन टच्ड, लेकिन आर्बिट्रेशन इज द ओनली वन व्हिच हैज बीन टच्ड एंड इट हैज एक्चुअली बीन इंक्रीज। पहले सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेशन लॉ आता था, अब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बोथ है। तो कॉन्सिलिएशन पर फोकस रखना बिकॉज दिस हैज बीन द पार्ट जहां तक की क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, फर्स्ट थिंग। तो आर्बिट्रेशन वाला पार्ट तो वैसे जो था उसमें रखना, कॉन्सिलिएशन पे फोकस रखना यहां पर। एंड देन वी हैव द अदर एक्ट्स लाइक टीपीए, इंडियन लॉ, रजिस्ट्रेशन, टॉर्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लोकल लॉज। देखो इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। 2018 में 4 क्वेश्चन टीपीए के आ गए थे, बट इट इज नॉट इन द सिलेबस। लेट मी से इट अगेन, अभी भी प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, मेंस के सिलेबस में टीपीए ऐड हुआ है। ये जो 4 क्वेश्चंस आए थे 2018 के एग्जामिनेशन में, इन्हें रिमूव कर दिया गया था एक्चुअली, बाद में जाकर के इन्हें रिमूव कर दिया गया था। एंड द एग्जामिनेशन में एक्सक्यूज मी, एंड इन द एग्जामिनेशन एक्चुअली क्या हुआ कि ये 4 क्वेश्चंस किसी ने अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो डिड नॉट मैटर बिकॉज दे वर आउट ऑफ द सिलेबस। दैट इज व्हाई द अथॉरिटीज हैड टू रिमूव दिस 4 क्वेश्चंस। इसी ये इवैल्यूएशन में काउंट किए ही नहीं गए थे, ठीक है। चलो यहां पर बाकी जो सब्जेक्ट्स है ये तो सिलेबस में है ही नहीं यहां पर। नाउ कम टू द अदर पार्ट, जिसको हम लोगों ने यहां पर जो थर्ड में डिवाइड किया था, इसमें द अदर लाइक इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, जनरल नॉलेज से देखो 20, 17, 38, 25, 41, 12, 18। देखो एक टाइम पे 41 क्वेश्चंस भी आए हैं डीजीएस में से। 25, 38 यू कैन सी काफी कंसिस्टेंट रहा है बीच में, बट अभी रिसेंटली इसका थोड़ा कम हो गया है, राइट। बट दैट डज नॉट मैटर। तुम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनरल नॉलेज से 20 से 25 क्वेश्चंस तुम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से आएंगे। बिकॉज देखो जब डिप होता है उसके बाद जो इंक्रीज है वो उतना इंक्रीज नहीं जितना होना चाहिए कि 41 के बाद सीधे 12 आ गया था, राइट। सो इसीलिए ये डिप पे ध्यान मत देना, और तो बस ये देखना है कि ओके अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। दिस इज 20 to 25 क्वेश्चंस जो है आप एक्सपेक्ट करो कि आपको जीके से आएंगे। एंड देन वी हैव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में देखो रिसेंट टाइम जो दिखेगा, ये तो पहले कंसिस्टेंट था, बीच में डिप किया था, बट 6, 9, 10 कंसिस्टेंट है। 8, 11, 16 देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स एप्टीट्यूड। इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन वो 16 के ऊपर जाने के चांसेस उसके ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। सो 15, 16 क्वेश्चन तुम एप्टीट्यूड से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से एक्सपेक्ट करो कि वो वहां पर रहेंगे। 15 मतलब 16 जो है वो अपर लिमिट है, उसके ऊपर जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है, मैं फिर से कह रहा हूं। हाँ, लेकिन तब भी 12, 14 क्वेश्चन तो तुम यहां से जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एप्टीट्यूड से आएंगे ही आएंगे। एंड देन वी हैव इंग्लिश which is often the ignored part। काफी इग्नोर रहता है इंग्लिश का पोर्शन, राइट। सो इंग्लिश इज वन। देखो यहां पर इफ यू कैन सी दिस ईयर what year was this, let me check, 2011। देखो 2011 में यू कैन सी कि इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस आए थे और यहां पर आए थे हमारे कितने 38 क्वेश्चंस, राइट। सो हम लोगों को ये देखना है कि इंग्लिश से कम भी है, लेकिन वो भी है आपको 50 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एंड देन 30 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल, 38 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज। जरा सोचो इस साल 2011 में 88 क्वेश्चंस, ये तो स्ट्रिक्टली जो थे नॉन लीगल सब्जेक्ट्स जो थे उससे थे। नॉन लीगल सब्जेक्ट्स 50 वर फ्रॉम इंग्लिश एंड 38 वर फ्रॉम जनरल नॉलेज। 88 क्वेश्चंस, सोचो जरा, 88 क्वेश्चंस नॉन लीगल सब्जेक्ट से थे। दैट इज द पावर। यहां पर समझो कि जिसने ये 88 अच्छा किया होगा उसी का सिलेक्शन हुआ होगा, उसी ने मेन दिया होगा, याद रखना इस चीज को। हाँ,
2011 was more of an exception than the general rule, because general rule जो है कि 20-25 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से आएंगे, बट 2011 में देखो पॉसिबिलिटी है, नॉट नेसेसरी। देखो 15, 20, 32 भी गया है, 21, इसीलिए यहां पर भी एवरेज मानो कि समवेयर अराउंड 20-25 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश से रहेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट इंग्लिश, इंग्लिश को भूलना नहीं है। मेनी ऑफ अस आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दैट इज व्हाट, मतलब वहां पर व्हाट वी स्टार्ट टू फील कि अरे इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो देख लेंगे, वेल एंड गुड, इंग्लिश हम देख लेंगे, बट दैट इज एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग एरोगेंट। ठीक है, डोंट मेक योरसेल्फ एरोगेंट, इफ यू आर एरोगेंट द एग्जामिनेशन विल मेक यू हम्बल। याद रखना, आप इंग्लिश एक बार देख के जाना प्लीज, पढ़ के जाना इसे, नॉट वेरी थोरो स्टडी बट एटलीस्ट आर.एस. अग्रवाल की जो इंग्लिश की बुक होती है वो एक बार देख करके ट्राई करना, और अगर कुछ ना मिले एटलीस्ट बैक ईयर के पेपर जरूर करके जाना कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। वी हैव मेड अ लिस्ट यहां पर कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हियर वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड idioms, phrases, paragrammatic, antonyms, adjectives, sentence corrections. So not very complicated, but you will need practice for this. But still, I know many of you will say कि नहीं इसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा, let me focus on the law subjects. Yes, बेटा, very good. Focus on the law subjects. But you can see there is an example कि 88 subjects जो है, 88 क्वेश्चन जो है वो law subjects से नहीं आए थे। इसको हल्के में मत लेना, जो भी इसे हल्के में लेगा यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क। आप इसे अच्छे से करके जाना, इंग्लिश को एक बार क्वेश्चन वगैरह एटलीस्ट बैक ईयर पेपर्स के जरूर देख लेना, राइट। सो दिस वाज द ब्रेक डाउन कि जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है। तो मेजर सब्जेक्ट्स में जो हम लोग काउंट करते हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी कैन सी कि कॉन्ट्रैक्ट से जनरली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, रिसेंटली तो एटलीस्ट तो नहीं आ रहे, 2010 के बाद से वी कैन सी कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी डोंट थिंक इसे इग्नोर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा इंक्रीज के चांसेस रहेंगे, बिकॉज इधर भी नहीं आए हैं तो मे बी डीजीएस सरप्राइजेज यू, हो सकता है सरप्राइज कर दे, लेकिन कभी भी टफ क्वेश्चंस बहुत नहीं आते उससे। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो जनरल ट्रेंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2019 में तो काफी कम क्वेश्चन आए थे, बट 2018 में भी एज यू कैन सी हियर, 2015, 14, 11 में भी जनरल ट्रेंड है आपको फोकस रखना है अपना फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पर यहां पर अपना फोकस रखना है इसे। ठीक है, यहां पर देखो कौन कौन से हैं, 21A, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, और देखो डीपीएसपी से भी क्वेश्चंस आएंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डीपीएसपी से, बट फिर भी एक बार देख लेना। फंडामेंटल राइट्स पे अपना मैक्सिमम फोकस रखना, राइट। उसके अलावा अगर जो आते हैं 23 आर्टिकल 23 जो है ये भी फंडामेंटल राइट्स में ही आएगा। डीपीएसपी से यू कैन सी कि नॉट मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम डीपीएसपी, एक दो आ सकते हैं भले ही, बट स्टिल देखो फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल 32 है यहां पर, और यहां पर हमारा आर्टिकल 25 है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आते रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स शुड बी योर एरिया ऑफ फोकस। पहली चीज, सबसे पहले क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स पे फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स यू कैन सी कि 53, 56, 58, 76 और उसके अलावा 64, और हमारा यहां रहा 72, एंड देन वी हैव 72। तो सेकंड थिंग, फंडामेंटल राइट्स के अलावा एग्जीक्यूटिव से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां फोकस रखना है, in constitution focus your revision upon fundamental rights and executive, and that is the union executive, this is the union executive, right। चलो उसके बाद जो हमारा इवन द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी, द यूनियन जुडिशरी, उससे अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एज यू कैन सी हियर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और बाकी जो है दे आर स्कैटर्ड। इवन देखो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स आर्टिकल 79 दिया हुआ है, एंड दैट इज इट। बाकी देखो फिर एग्जीक्यूटिव से आया क्वेश्चन, फिर हमारा क्वेश्चन जो एग्जीक्यूटिव से आया, और यहां पर पार्लियामेंट से देखो बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, मर्सी पिटिशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट। देखो फिर मैं कह रहा हूं फंडामेंटल राइट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए, ठीक है।
जुडिशरी से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो भी जो आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं 145, 137, ये सारे पे फोकस रखना अपना हमेशा। आर्टिकल 226 ऑब्वियसली जुडिशरी वाला फोकस रखना, बट ओनली द मेन पार्ट्स। आप वहां बहुत डीप में मत जाना कि आर्टिकल 139 क्या है, 138 क्या है, 131 क्या है, 132 क्या है, उतना ज्यादा फोकस यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। और जो बाकी सब है देखो, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, 300A राइट टू प्रॉपर्टी है, 371F, ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज नो वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि तुम्हें देखना पड़े कि इसमें क्या होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस रखना। एसआरए, देखो एसआरए में भी, वेल नॉट इन स्पेसिफिकली टू एसआरए, एनी लॉ दैट यू स्टडी इन द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, वो जिस भी लॉ से पूछते हैं कभी बहुत डीप जाकर के या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पूछते। व्हाट दे डू, वो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे, ठीक है। वो लैंग्वेज उसकी ट्विस्टेड होती है, राइट। क्वेश्चन सिंपल रहेंगे लेकिन उस पर लैंग्वेज ट्विस्टेड रहेगी। वो लैंग्वेज आपको कैसे पकड़नी है कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लैंग्वेज ऐसी होती है कि यू माइट गेट कंफ्यूज, बट हाउ डू यू नॉट गेट कंफ्यूज? बाय गोइंग थ्रू द बेयर एक्ट्स। आपको पूरे टाइम बेयर एक्ट पे फोकस रखना है। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू द बेयर एक्ट्स, याद रखना कि ओनली गो थ्रू द मेन प्रोविजन, सेक्शन 6 मेन प्रोविजन 8, 10, 14, एंड देयर हैव बीन रिसेंटली अमेंडमेंट्स इन द एसआरए। 2018 में काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेकर के अमेंडमेंट्स हुई थी एंड कोर्ट्स वगैरह स्टैब्लिश की गई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो 22, 36, 38, 39, जैसे हम लोग वहां पे पढ़ते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन वगैरह या इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, 41 में देयर इज द होल लिस्ट ABCD करके, वहां कई सारी पूरी लिस्ट आ जाती है वहां पर। ये सारी चीजें यू नीड टू फोकस, लेकिन देखो बहुत डीप ना करके नहीं पूछा जा रहा है कि ये क्या है, कि सेक्शन 12 में सब सेक्शन 2 में क्या है, ऐसा नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे एक्ट को कवर कर देती है। यू कैन सी हियर, एसआरए ही छोटा एक्ट है, छोटा एक्ट है, यू नो इट कंटेन्स 43 सेक्शंस। देखो सेक्शन 6 से स्टार्ट किया है और वो सेक्शन 42 तक उन लोगों ने कवर कर दिया है। सेम थिंग विथ डीजेएस, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो उन लोगों ने यहीं पर देखो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया है और आर्टिकल 371F तक गए हैं, राइट। और अब उन्हें पूरे टाइम का पूरे सब्जेक्ट को पूछना है, राइट। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर के 371F तक पूछा है। सो दे कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग, वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को फोकस कर सकते हैं। तो तुम्हें भी वही काम करना है। यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी चीज को देर आउट, और इफ यू हैव एनी नोट्स अपने नोट्स रिवाइज करते रहो, ठीक है। नाउ हियर वी हैव द सीपीसी, ठीक है। अब देखो सीपीसी में भी उन लोगों ने स्टार्ट कहां से किया, सेक्शन 10 से, इट इज रेस सब जुडिस, ठीक है। अब यहां से भी देखो स्टार्ट करते हैं 35A सेक्शन 6, जो भी कर रहे हैं, पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट, जहां भी जा रहे देखो ऑर्डर 38, सेक्शन 9, 14, सेक्शन 16, 18, 20, 24, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें लगे कि ये ऑब्सक्योर है, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, नहीं। लाइक देख ऑर्डर 22, वी कॉल इट एज अबेटमेंट, दिस इज अबेटमेंट, राइट। अब अबेटमेंट से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोग नहीं करते हो, नहीं करते हो, लेकिन देखो कि सेक्शन 10 से स्टार्ट किया और वो अबेटमेंट तक पहुंच गए और यहां विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स तक पहुंच गए और 23 तक। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये पूरे सीपीसी को कैप्चर कर लेते हैं। सेक्शन 10 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर देखो सेक्शन 80, 100A, वो सारा कुछ इसमें कवर कर रहा है, और 6, 7, 114। सो याद रखो कि ये बहुत ही डीप में जाकर के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। ऑर्डर 6 रूल से, और 37 और 39 रूल 1 टेम्पररी इन्वेंशन से। देखो आई एम सेइंग दिस अगेन, वो सीपीसी के एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस नहीं कर रहे कि वहां जाकर के डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूरे सीपीसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेम इज द केस विद एसआरए, तो सेक्शन 6 से स्टार्ट किया था, सेक्शन 42 तक गए थे। सेम इज द केस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया था और वो 371F तक गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसीलिए वो कभी भी बहुत डीप में जाकर नहीं पूछते। लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करेंगे, वो लैंग्वेज ट्विस्ट करते हैं जस्ट टू सी कि ओके इवन इफ द लैंग्वेज इज ट्विस्टेड कैन यू गेस द आंसर।
और वो कहां से आता है? आपके रिवीजन से आता है। देयर एक्ट को बार बार अपना रिवाइज करते रहो, वहां से आएगा। ठीक है, यहां पर भी देखो, none of these order 21, order 5, order 8, बेटा order 21 एग्जीक्यूशन इश्यू ऑफ समन्स order 5 and ये order 8, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीपीसी में आते हैं, इंपॉर्टेंट से ही पूछ रहे हैं। वो कभी भी बहुत जाकर के डीप में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो एक एक तो ये सब 2019 के क्वेश्चंस हैं, देखो वो हर एक टॉपिक से जाकर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसीलिए तुम लोगों को ये नहीं करना कि एकदम पूरा डीप में स्टडी करने चले जाए। तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को बस फोकस रखना है कि मुझे पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। ऑर्डर 47 तक वो चले गए हैं। यहां पर देखो ऑर्डर 39 टेम्परेचर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर 2019 में, और 2019 में ही हमारा क्वेश्चन जो है वो रहा है यहां से भी। देखो जरा, हियर वी हैव सेक्शन 18 से भी क्वेश्चन रहा है 2019 में, और हमारे ऑर्डर 1 और 2 से भी क्वेश्चन रहा है। रेस जुडिकेटर सेक्शन 11 से 2019 में क्वेश्चन रहा है। तो सेक्शन 11 एकदम स्टार्टिंग है सीपीसी का, और ऑर्डर 39 जो है या ऑर्डर 47 की अगर हम लोग बात कर ले, वो क्या है? एंड है पूरा सीपीसी का। तो ये तो 2019 में ही स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूछा उन लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है कि यू डोंट नीड टू स्टडी वेरी थॉरली, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ना है। और इसमें जैसे यहां पर ये देख लो सेक्शन 148A है विच इज कैवियट। अब कैवियट से क्वेश्चन देखो, ये सेक्शन 148 अगर सेक्शंस की बात की जाए सीपीसी में तो वो एंड की तरफ आता है, राइट, क्योंकि 158 सेक्शन ही है, तो 148A जो है वो एंड की तरफ आता है। बट उससे एक क्वेश्चन था। माय पॉइंट इज कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यू कैन सी एक एक क्वेश्चन सबसे आ रहा है। देखो एक एक क्वेश्चन जो है वो सभी से आ रहा है। यहां पर 2014 में भी देख लो, दे आर डूइंग one question from each and every important topic, and one question from each and every important topic, of course they cannot ask each and every topic, नहीं, important topic से ही question आ रहे हैं। Now here we have CRPC, same is the case with CRPC। देखो सेक्शन 2 से वो स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन से हर एक सेक्शन को कवर करते हुए दे आर कवरिंग ईच एंड एवरी सेक्शन। और उसके बाद यहां पर देखो जैसे 438 है, उससे लेकर के सारे क्वेश्चंस यहां जाकर के हम लोगों के यहां पर देखो हम लोगों के सारे, देखो ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज की है, ये सारे जो सेक्शंस है दे आर ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेज। एंड यू कैन सी कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज से देखो डिफॉल्ट बेल, कन्फेशन स्टेटमेंट 2019 का, देखो हर एक से एक क्वेश्चन आ रहा है। कभी भी बहुत जाके डीप में नहीं पूछ रहे। इन्वेस्टिगेशन से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे अरेस्ट से रहेंगे, कुछ बेल से रहेंगे, कुछ मेंटेनेंस का है। वो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। सो व्हाट यू नीड टू डू, चलो एक मिनट, यहां पर देखो, यहां पर भी सेक्शन 258 से लेकर 260, ये सारे सेक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 320 कंपाउंडिंग जो होती है, और 340 हम लोगों ने देखा, 357A ये तो अमेंडमेंट आई थी। ये सारे जो क्वेश्चन है देखो एक एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं एक टॉपिक से, ठीक है। इसीलिए आपको एक टॉपिक बहुत डिटेल में मत करना, आप पूरी की पूरी सीआरपीसी को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार थोरोली अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। डू नॉट गो इनटू डिटेल। अगर डिटेल जाओगे, देखो जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेफिनेशन से, राइट, देयर आर 484 सेक्शंस इन सीआरपीसी, और यहां देखो हम लोग 389 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, राइट। So they are not asking the questions in very detail। देखो 460, 462, 468, 469 ये सब जो है वो सेक्शन 2 से लेकर के और 469 तक पहुंच गए हैं इन अ वेरी शॉर्ट मैटर ऑफ टाइम। वो 2019 में ये सारे क्वेश्चंस आए। दैट मीन्स दे आर आस्किंग फ्रॉम द होल सिलेबस और द इंटायर सिलेबस, एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज नॉट आस्क यू ट्रिकी क्वेश्चंस। वो बहुत डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं आपसे, वो बस चाहते हैं कि एक बार आप पूरा सिलेबस कवर करो, पूरे सिलेबस कवर करो, और पूरे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे सिंपल और बेसिक और थोड़े से लैंग्वेज ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे। So you can see here also that in IPC it is the same case, and also for partnership, and here we have the Limitation Act
which starts with again with section 2, right? And देखो 2019 में सेक्शन 3 से भी क्वेश्चंस आए थे, and then they went to 4, 5 and then to section 9 and then to 18 और उसके साथ ही 25. There are total number of sections in limitation act is 32, जिसमें से 28 ही पढ़ने होते हैं because the 4 of them are repealed. But you can see कि उन्होंने सारे देखो 4-5 ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे लिमिटेशन एक्ट से, लेकिन क्या है सबसे ही पूछ दिए उन लोगों ने, ये याद रखना. और लिमिटेशन एक्ट में देखो आर्टिकल्स, some people say that article याद करना, well, not advisable because there are 137 articles, so you're not going to remember each and every of them. If you have memorized some, अगर कुछ याद है already, that is a different thing, वो अलग चीज है. Now here we have the Evidence Act. The Evidence Act will also have the same thing. They are going to ask you questions, not very complicated, but they will try to ask it from each and every important provision. ऐसे questions पूछेंगे कि तुम्हारा पूरा Evidence Act वहां से cover हो जाएगा, right? So here you can see यहाँ पर ये सारे 112, 114, 15, 132, 134, 141, all of these are important parts. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो ऑब्सक्योर पार्ट से पूछते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट से ही पूछते हैं, बट ऐसे कि वो पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में कवर कर देते हैं, राइट? एंड हियर इज आल्सो द केस विद आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, सेक्शन 8, 9, 4, सेक्शन 10, यहां से लेकर के एंड दे विल गो टू सेक्शन 43, जो कि सारा का सारा हमारा वो है. जो अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात की जाए तो वो सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 43 तक ही है, इसके बीच में ही है. सो वहां पर पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट जो आपको है वो करना पड़ेगा, बट ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे अपीलेबल ऑर्डर्स कहां पर है, सेक्शन 37 में आपको वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल है, कौन से कोर्ट के ऑर्डर्स अपीलेबल है, कौन से ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स अपीलेबल है. वेरी स्मॉल लिस्ट सेक्शन 37. तो आपको बस वो याद रखना है. आपको ये कभी नहीं करना है कि पूरी चीज पढ़ो और पूरी अच्छे से पढ़ो, नहीं, पूरी पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, सिर्फ मेन टॉपिक्स अच्छे से करो, राइट? अब देखो यहां पर जो करंट उससे क्वेश्चंस आए हैं, करंट इज रियली अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पार्ट. टू बी ऑनेस्ट, इट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पार्ट, बिकॉज कहीं कहीं वो 2014 में एक पर्टिकुलर एरिया से उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, बट एज यू कैन सी कि 2015 में वो एरिया पूरा ही नेग्लेक्टेड है. सिमिलरली 2011 में देखो उन्होंने एक पार्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, ये सारे पार्ट से, लेकिन वही पार्ट नेक्स्ट टाइम देखो यहां पर ये पूरा ही नेग्लेक्टेड है. और सिमिलरली देखो 2010 में जो यहां पर ये पार्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन आए लेकिन उसके बाद नहीं आ रहे हैं. सो इट कैनॉट बी सेड कि कहां से क्वेश्चन आएगा. जस्ट गिव अ जनरल ओवरव्यू टू ऑल ऑफ देम. इसीलिए ये मत सोचना कि करंट अफेयर्स में लीगल जीके वगैरह जो न्यूली एडेड है लीगल जीके, वहां से भी क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे. क्वेश्चंस आएंगे सिंपल टू द पॉइंट. बट प्रॉब्लम यही होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट गो थ्रू द सिलेबस. आपको अगर आपके पास अगर यूनिवर्सल की लीगल जीके है, दैट विल बी इनफ फॉर लीगल जीके एंड एनी करंट अफेयर्स मैगजीन विल डू, इंक्लूडिंग प्रतिज्ञा दर्पण. और प्रतिज्ञा दर्पण में पूरी मत पढ़ना, यू ओनली नीड टू गो थ्रू प्रतियोगिता दर्पण में यू ओनली नीड टू गो थ्रू द मेन पार्ट्स, स्पेशली द नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द मेमोरेबल पॉइंट्स. और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है दैट वुड बी द कॉम्पेंडियम. उसमें एक कॉम्पेंडियम का पार्ट आता है, वो भी देख लेना, जीके के हिसाब से वो अच्छा लगता है. लेकिन इसमें मेमोरेबल पॉइंट्स का एक 2 पेज का वो समरी रहती है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज सबकी, वो देख लेना, वहां से करंट अफेयर्स आने के चांसेस काफी होते हैं. नाउ अब देखो इसके बाद one thing, other thing that students are most scared of, which is negative marking. Negative marking, because दिल्ली में negative marking कितनी है? 0.25 negative marking है, ठीक है? देखो, first thing, attempt as many questions as you can. There will be 200 questions और 200 questions के 1 mark each, तो यानी कि टोटल है 200 मार्क्स की, ठीक है? अटेम्प्ट
एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, जितने कर सकते हो उतने करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नहीं भी आता तुम वो भी अटेम्प्ट किए जा रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना। नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने का जो तरीका है, दैट इज इवन इफ यू आर 50% श्योर, राइट। सपोज कोई मान लो कोई क्वेश्चन है, चलो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, वट एवर द क्वेश्चन इज, इसके 4 ऑप्शंस है, लेट्स से ए, बी, सी और डी, 4 है। नाउ यू आर श्योर कि ए और सी तो नहीं है, ये 2 है। सपोज सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें पता है कि ए और सी नहीं है, राइट। बी और डी में से कोई एक है, बी और डी में से तुम्हें कोई एक लग रहा है इन दोनों में से आंसर। ऐसे सिचुएशन में रिस्क टेकिंग इज वर्थ इट, ऐसे में रिस्क टेकिंग वर्थ इट है, ठीक है। यहां पर रिस्क लो कि बी और डी, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 तो नहीं है, ए और सी नहीं है, तो मे बी बी और डी में से कोई हो। यहां पर तुम बी या डी दोनों में से कोई एक जो भी तुम्हें सही लग रहा हो कि अच्छा ये वाला कर देता हूं, वो वाला कर देना। लेकिन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीवन, ए बी सी डी कुछ भी आइडिया नहीं है इसमें से किसी का, वहां पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो गलत होगा, तो वो क्वेश्चन तो गलत हुआ ही, जो तुमने उस पर टाइम वेस्ट किया वो अलग, और जो वो 0.25 तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग करेगा वो अलग से, ठीक है। सो रिस्क टेकिंग वाला काम तभी करना है व्हेन यू आर एटलीस्ट 50% श्योर कि ओके मुझे पता है कि ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों को मैं तुरंत एलिमिनेट कर सकता हूं, ये दोनों में से कोई एक है, वही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये उनमें है जब तुम कंफ्यूज हो। इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट, वहां पर रिस्क टेकिंग की बात है ही नहीं। जो श्योर शॉट क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, वहां पर गो है अटेम्प्ट करो, उसे बिल्कुल करो। दिस ये वाली जो चीज है कि नेगेटिव मार्किंग कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, इसमें अगर तुमने दो एलिमिनेट कर दिए हैं और 2 में से कोई एक को चूज नहीं कर पा रहे हो, तब रिस्क टेकिंग वाला काम किया करो, तब नेगेटिव मार्किंग का रिस्क लिया जा सकता है। वरना बाद में तुम्हें अफसोस होगा। अगर मान लो ये वाला सिचुएशन है तुम्हारी कि तुम्हें आउट ऑफ द 4 तुम्हें एक भी नहीं पता, तो तुम्हें आइडिया नहीं कि ये आया कहां से है, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर रिस्क बहुत वो होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखो बी और डी में से सही होने के चांसेस 50-50 रहेंगे तुम्हारे। लेकिन अगर तुम्हें एक भी नहीं आया तो दैट इज अ 25% चांस कि तुम सही हो, और वो जस्ट नॉट वर्थ द रिस्क, वो रिस्क लेने लायक ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपनी सारी मेहनत को, मतलब देखो ये तो तुमने अगर मान लो कि तुमने अननेसेसरी रिस्क लिया है, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी रिस्क लेने से ये होगा कि जो तुमने गलत किया वो तो किया ही, जो तुमने सही भी किया था तुम उसके भी मार्क्स कम कर रहे हो, राइट। सो 1 मार्क्स तो तुम्हारा ये तो गया ही, जो 0.25 जो तुमने सही किया था वो भी गलत कर रहे हो, तो तुम अपने ही मार्क्स कम करा रहे हो अननेसेसरी रिस्क लेकर के। रिस्क तभी लो जब तुम एटलीस्ट 50% श्योर हो कि हाँ इन दोनों में से कोई एक होगा, और वो सिर्फ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस में होगा। श्योर शॉट वाले में तो तुम्हें पूरा अटेम्प्ट करना ही है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑफ देम, देन गो फॉर दी अदर 2। दोनों में से जो सही लगे वहां पर उस टाइम पे जो तुम्हारा हंच काम करता है। एंड याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम योर हंच इज ऑफन ट्रू, योर हंच इज ऑफन ट्रू, not always but most of the time, like 80% of the time your hunch will be correct, but 20% of the time your hunch will be wrong, ऐसा भी होगा, ठीक है। so don't go around taking unnecessary risk, और वहां पर बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं दौड़ाना। अगर ये सिचुएशन है then you can take a risk for negative marking। अगर ये सिचुएशन नहीं है, I would not advise you to take the risk, ठीक है। चलो that will be it, and lastly before going, देखो बेटा you have less than 20 days for appearing for the examination। तो now thereafter तुम्हें बस ये रिवाइज करते रहना है। एंड इफ यू हैव एनी नोट्स, अपने हैंडमेड नोट्स वगैरह है, बस वो रिवाइज करना। डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, बहुत नया कुछ मत पढ़ लेना, राइट। किसी आरपीसी में जो टॉपिक पढ़ाई नहीं कभी, वो आप बैठ के पढ़ रहे नहीं। नया पढ़ने से अच्छा है कि तुमने जो पुराना पढ़ा है उसे रिवाइज करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जामिनेशन।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन रिविजन रिविजन। सबसे ज्यादा जितना रिवाइज करोगे वो तुम्हारे मन में उतना अच्छा से बैठेगा। और अपने बेयर एक्ट को जब तुमने सब्जेक्ट पढ़ा था उस टाइम पर जो भी बेयर एक्ट में नोट्स या मार्किंग्स की होंगी, नोट्स या मार्किंग्स की होगी, यू नीड टू रिवाइज इट एंड रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। टारगेट होना चाहिए 6 टाइम्स का। टारगेट होना चाहिए कि अभी मेरे पास 20 डेज है, अभी मैं 6 टाइम्स रिवाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं। 6 टाइम्स करो, अगर 6 टाइम्स नहीं होगा 4 टाइम्स तो होगा। अगर 6 टाइम्स का टारगेट लेके चलोगे तभी 4 टाइम्स होगा। अगर 4 टाइम्स का टारगेट लेके चलोगे तो वो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं 6 टाइम्स का टारगेट लेके चलना। अगर अचीव कर लिया वेरी गुड, नहीं किया तो 4 तो हुआ, 5 तो हुआ। तुम लोगों ने वो सुना होगा, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। वही चीज यहां पर भी है। 6 टाइम्स का टारगेट लो, इफ यू कैनॉट अचीव दिस टारगेट एटलीस्ट यू विल हैव 4 टाइम्स। ठीक है, तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठंडे दिमाग से देना पेपर, डू नॉट पैनिक। एग्जामिनेशन में डू नॉट पैनिक। वहां पर काफी टाइम 2-2.5 घंटे तक बैठ के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है एंड लेकिन फिर भी जस्ट बी काम। जो भी तुमने रिवाइज किया है, जो अगर रिविजन अच्छे से किया है तो वहां पर काम रहोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन। ठीक है, चलो विद दैट सेड, चलो सो नेक्स्ट इज आईपीसी। सेम इज द केस विद आईपीसी 2। जैसे कि हम लोगों ने अभी सीआरपीसी और सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन और एसआरए में देखा था, सेम इज द केस विद आईपीसी 2। वो बहुत डीप जाकर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। एक ही क्वेश्चन रहेगा और वो हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देखो यहां से गुड फेथ से लेकर के और सेक्शन 87 अबेटमेंट कॉमन इंटेंशन सबसे एक ही क्वेश्चन है, बट वो चाहते हैं कि वो पूरे, तो याद देखो, आई एम डूइंग रिपीटिशियस आई नो, बट हर एक सेक्शन से वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। दे वांट टू कवर द एंटायर सिलेबस इन ईच सब्जेक्ट। एक ही बार में वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, ग्रीवस हर्ट, थेफ्ट, सेक्शन 410 द स्टोलन प्रॉपर्टी एंड देन वी हैव सेक्शन 382। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिकॉल्टी से लेकर के और एडल्ट्री तक। एडल्ट्री और रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द नवतेज सिंह जौहर, नॉट नवतेज सिंह जौहर, द जोसेफ शाइन जजमेंट। तो इसीलिए क्वेश्चन आएंगे यहां से। आई एम सेइंग दिस अगेन, ये मत सोचो कि तुम्हें हर चीज पढ़नी है डिटेल में, नहीं, हर चीज पढ़नी है, बहुत डिटेल में मत जाना। तुम ट्राई करना कि उसका पूरा सिलेबस तुम कवर कर दो। दैट शुड बी योर गोल, राइट? नॉट कि मुझे हर एक चीज पढ़नी है, नहीं। यू कैन सी कि कुछ चीजों से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट 2011 के बाद से आप गिविंग फॉल्स एविडेंस में क्वेश्चन नहीं आया है, राइट? सो गिविंग फॉल्स एविडेंस पर ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं, कम होने के हो सकते हैं, लेकिन माय पॉइंट इज कि तुम पूरा सिलेबस कवर करो और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ो एंड जस्ट गो थ्रू द बेयर एक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और एक बात और, अमेंडमेंट्स हमेशा पढ़ के जाना, अमेंडमेंट्स को हमेशा पढ़ के जाना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज द लास्ट वन वी आर टेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब मैंने बात की थी कि वो लोग चाहते हैं कि एक बार में पूरे सिलेबस से पूछ ले, वो एटलीस्ट पूरा सिलेबस कवर कर दे, नॉट एवरी टॉपिक, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से वो रैंडमली पिक कर सकते हैं 1 ईयर में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस रखना अपना, ठीक है? हियर दे स्टार्ट विद सेक्शन 2, ठीक है? अब इसके बाद देखो यहां पर सेक्शन 3 जो है हमारा 2019 में, उसके बाद सेक्शन 19, सेक्शन 20, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत इजी चीज है। एक्सेप्शंस टू वॉइड एग्रीमेंट 2019 में, मेजरिंग एग्रीमेंट दिस इज आल्सो 2019। अब देखो ये सारी चीजें जो है, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इनमें से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट दे व्हाट दे वांट यू टू डू, दे वांट यू टू बी थॉरो विद द एंटायर सिलेबस, दैट इज वेयर योर फोकस मस्ट बी।